Hello, my dear friends. Today I have decided to discuss chapter 21 that deals about the summary trials. As you know that all of you are comfortable in the Hindi language and I am also comfortable in that language, and that's why I will lead this matter in the Hindi. As you know that in the previous classes I have already discussed that there are four types of trials. First was that the session trial, second was the summons warrant trials, third was the summons trial, and fourth was the summary trial. And regarding the chapter was very clear regarding chapter 18, 19, 20, 21. Today time has come to discuss the chapter 21, that is the summary trial. First of all, there are several times question arise, what is the meaning of the several trials, what is the object of the several trials, summary trials. I will discuss each and everything, but I will start this class from the sections, that is the summary of the sections. Here is that section, there are total 6 sections we have to discuss. First section is that the which discuss about the power of the summary, power to try summarily the cases, and second section, that is the section 261, talks about the summary trials by magistrate of the second class, and third is that the power of the summary power, procedure for summary trials, third is the regard of in summary trials, and fourth is that judgment in cases tried summarily, and fifth is last is that language of regard of the judgment. देखो, रात तो पूरी अंधेरी हो चुकी है। रात सुबह के लगभग 2:45 बज रहे हैं। तो इसमें रिकॉर्ड करने में कभी कभी थोड़ा लैंग्वेज का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि रात भी अपना काम करती है, नींद भी अपने आगोश में समेटने का काम करती है, उसको समेटना भी चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी चीज नींद है। तो इस तरह से हम डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन कुछ जिम्मेदारी अपनी भी है, तुम लोग भी अपना आंख कान खोल करके सुनना। अब कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करेक्शन होगा तो कर लेना, बाकी तो कंसेप्ट ठीक चलेगा। नाउ आई विल स्टार्ट section 260. If you see the section 260, there are three parts of the section 260. First part talks about the discretion of the court. Why the first part, that is the discretion of the court? Because it is the total discretion of the magistrates whether the offences should be tried in the summary trial or other procedure must be followed. So here is that you cannot compel that that offence must be tried summarily. The first point is that first of all you have to consider this chapter, it depends upon the discretion of the magistrate. Application of this chapter depends upon the magistrates, but although there are certain restrictions even upon the magistrate, I will discuss later on. The first point is that these sections deals the discretion of the court. Why we can say that this is the discretionary power of the court? If we see the section 260 clause 1, last word is that may, comma, if it thinks fit, try in a summary way all or any of the following offences. The word may and if it thinks fit both denotes that this is the discretion of the court. And the second part of this section, that is the who can try, it means who can try, it means who judges, which judges, who judges, who is authorized to take the to conduct the such trial. That is there are four types of judges have been authorized here, and that is the chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, magistrate of the first class, magistrate of the second class. तो यहाँ पे 4 तरह के जजेस हैं जो कि इसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। अब वो 4 तरह के जजेस कौन कौन है, क्या है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा बाद में ही। और उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड, और इसमें लिखा हुआ है कि कितने ऑफेंसेस, 9 तरह के ऑफेंसेस इसमें ट्रायल हो सकते हैं। तो 260 में हमें कितने पॉइंट मिले सीखने को? हमें 260 में 3 पॉइंट मिले सीखने को। पहला पॉइंट ये मिला कि जजेस का डिस्क्रिशनरी पावर है कि कौन सा ऑफेंस समरी ट्रायल कंडक्ट किया जाए या न किया जाए। अब दूसरी बात है कि कौन जजेस समरी ट्रायल कर सकते हैं। 4 तरह के जजेस समरी ट्रायल कर सकते हैं। और एक अलग ये भी क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में, हम डिस्कस करेंगे कि अगर जज समरी ट्रायल कंडक्ट करने के लिए अथराइज नहीं है, अगर वो कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो उसका इफेक्ट सेक्शन 461
एम के अंतर्गत उसको डिसाइड किया गया। मेरा नाम मुरारी है, मेरे नाम से याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। So that is that matter will that about the who can try, and if he is not authorized and he conducted the trial, I will discuss later on. What offenses can be tried? इस सेक्शन में हम 3 पार्ट को डिस्कस करेंगे। वेट, फर्स्ट डिस्क्रेशन, कौन जजेस कर सकते हैं, 4 जजेस कर सकते हैं, कितने ऑफेंसेस का किया जा सकता है, 9 ऑफेंसेस का समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब हम 261 में आते हैं कि समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। अब देखो, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में यहाँ कुछ स्पेशल प्रोसीजर है, लेकिन ध्यान रखना कि सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट इस 4 में से एक है, चौथा इसमें से सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट ही है। तो सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट जब ट्रायल कंडक्ट करेगा तो वो कंडीशनल है। कंडीशनल ये है कि तभी ट्रायल कंडक्ट करेगा जब उसको हाई कोर्ट अथराइज करे, और दूसरा उसका कंडीशन है कि हाई कोर्ट उसी मामले में उसको अथराइज करेगा जो कि 6 मंथ का ऑफेंस पनिशेबल हो। तो हम जब इसमें 4 तरह के ऑफेंसेस को जब ट्रायल करेंगे कि 4 तरह के जजों को, तो वहां पे एक मिनट दिखाई देता हूं तुम लोगों को। तो उसमें से 2 कैटेगरी है जजों की। पहले कैटेगरी ये है, देखो यहाँ पे कैटेगरी है, पहली कैटेगरी कंडीशनल है, सॉरी ये गलत हो गया, ये वर्ड कंडीशनल की जगह अनकंडीशनल, अनकंडीशनल की जगह कंडीशनल होना चाहिए, मतलब ये पूरे तरह से सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं आपको, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड की जगह अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों जो जजेस हैं उनको किसी अथराइजेशन की जरूरत नहीं है, वो विदाउट कंडीशन है, दे कैन कंडक्ट द ट्रायल। तो यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि नो नीड ऑफ अथराइजेशन, इनको किसी से प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ टेकिंग द प्रायर परमिशन। तो अब ये दोनों जो हैं, ये मैटर जो हो गए, इनमें किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी के हैं जिनको कि हम कंडीशनल हमें लिखना चाहिए था, 2 वर्ड गलत हो गए हैं। अब गलत क्या हुए हैं, अब इसका मैं बता देता हूँ कि देखो, जो गलत हुए हैं ये गलत हुए हैं, ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, अभी हो जाएंगे कंडीशनल। और ये जो अनकंडीशनल है, यहाँ पे अन जुड़ जाएगा, ये यू और एक एन जुड़ जाएगा, अनकंडीशनल हो जाएगा। तो ये हो गया कंडीशनल हो गया। बात कितना एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं यार, बहुत तेज तर्रार आदमी हो गया हूँ मैं। थैंक्स सुमित, तुम ही सारा सिखाए हो। कंडीशनल हो गया यहाँ पे। अब कंडीशनल की बात है कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब इसमें कि ध्यान में रखने की बात यह है कि मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास भी अथराइज्ड होगा। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तभी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है जब वो अथराइज्ड बाय द हाई कोर्ट हो। लेकिन जब सेकेंड क्लास की बात आती है तो इसमें 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन कि अथराइज्ड बाय द हाई कोर्ट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन इसका ये है कि हाई कोर्ट भी उसी मैटर में अथराइज कर सकता है, उसी ऑफेंसेस के लिए अथराइज कर सकता है जो कि पनिशेबल 6 महीने से ज्यादा का उस मामले में पनिशेबल ना हो। लिख रहा है कि नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। कह रहा है कि इसमें देखो, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या है कि दोनों ही समरी ट्रायल तभी कंडक्ट कर सकते हैं जब हाई कोर्ट उसको अथराइज कर दें। जैसे मान लीजिए कि यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में या यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गाजियाबाद लेते हैं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि 50 टी मजिस्ट्रेट जज हैं, तो 50 में से मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने 10 को अथराइज किया, 10 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अथराइज किया, तो 10 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। 40 जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं, तो भले ही फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट हों, लेकिन वो उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं करेंगे। बाय चांस उनको अथराइज नहीं किया गया है और उसमें से एक ने कंडक्ट कर दिया, मान लीजिए 25वें नंबर का जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था उसको हाई कोर्ट ने अथराइज नहीं किया था और उसने कंडक्ट कर दिया, तो जब कंडक्ट कर दिया तो उसका मैटर आएगा सेक्शन 460 के क्लास यम में आएगा, और वह प्रोसीडिंग विसिएट कर जाएगी, वह प्रोसीडिंग विसिएट कर जाएगी, मतलब कि दोबारा से प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया कंडीशनल का। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड दोनों ही कंडीशनल है, लेकिन दोनों को हाई कोर्ट द्वारा अथराइज होना चाहिए। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहाँ पे जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अथराइज किया जाएगा तो अथराइज हो जाएगा, जैसा कि सेक्शन 29 में लिखा है कि 3 साल तक का
3 साल तक का पनिशमेंट दे सकता है, 3 साल के केसेस का ट्रायल कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक का समरी ट्रायल के मैटर का कंसिडर कर सकता है। लेकिन सेकेंड क्लास को जब अथराइज करेगा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट भी उसी ऑफेंसेस के लिए अथराइज करेगा जिसका पनिशेबल 6 महीने से ज्यादा न हो। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, ये क्रिमिनल मैटर है और ये सब जैसे कि जब एंट्री होती है तो धीरे धीरे प्रमोट होते जाते हो। तो इनिशियल स्टेज पे जुडिशियल क्रिमिनल लॉ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास मिलता है, और जब एक्सपीरियंस होता है तो आप फर्स्ट क्लास बनते हो, सीजीएम बनते हो, फिर आप बढ़ते जाते हो। तो इसीलिए समरी ट्रायल, देखो समरी ट्रायल में प्रोसीजर भी शार्ट होता है, इसका पर्पज भी है कि स्पीडी ट्रायल हम डिसाइड करें। तो अगर सीरियस मैटर में हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को अगर अथराइज कर देंगे ज्यादा पनिशमेंट के मामले में, तो अगर अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा, तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। इसीलिए से छोटे छोटे मामले में इसे दिया गया है, ठीक ना। तो दोनों ही, अब अगर पूछा जाए कि कितने तरह के जजेस समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, तो तुम बताओगे 4 तरह के जजेस कर सकते हैं। तो उनको बोलेगा कि तुम बताओ कि इनमें क्या क्या है, क्या खासियत है। तो कहोगे कि 4 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये है कि कंडीशनल अरे अनकंडीशनल है, सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनमें हाई कोर्ट का अथराइजेशन का या किसी के अथराइजेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन 2 जजेस हैं वो कंडीशनल हैं। कंडीशनल क्या है कि दोनों तभी ट्रायल कर सकते हैं जब हाई कोर्ट उनको अथराइज कर दे। मान लीजिए इंटरव्यू में अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा दोनों कंडीशनल है, दोनों हाई कोर्ट द्वारा अथराइज होने चाहिए, तो दोनों में अंतर क्या है। तब बताओगे कि दोनों में अंतर यही है कि हाई कोर्ट जब फर्स्ट क्लास को अथराइज करता है तो अनलिमिट नहीं होती है, और यहाँ पे जब अथराइज करता है तो यहाँ पे लिमिट होती है कि 6 महीने तक के मामले में ही अथराइज किया जा सकता है। तो यही मैं तुम लोगों को बताना चाहता था यहाँ पे कि जो मैं बताना चाहता था कि जो ऑफेंसेस कितने तरह के, कौन कौन ट्राई कर सकता है, 4 तरह के। अब कौन कौन ऑफेंसेस ट्राई किए जा सकते हैं, 9 तरह के हो सकते हैं। तो अब आ जाओ, तुम लोग बताते हैं 9 तरह के कौन होते हैं, जिससे कि एक सेक्शन हम कंप्लीट कर लें। तो 9 तरह के याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, याद कर लेना एकदम 1 बाय 1, पता चलना चाहिए कि कौन तुम्हें पढ़ाया है। वैसे तो तुम लोग गलत बताओगे तो मेरा नाम बताओगे, सही बताओगे तो कहोगे हाँ हाँ बस हम ही पढ़े हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ इधर, ऐसा मत करना तुम सब, तुम्हें भरोसा है। चलो आओ यहाँ पे देखो। अब 9 तरह के ऑफेंसेस का हम ट्राई करेंगे। 9 तरह का याद कैसे करना है, बहुत इजी तरीका बता देता हूँ तुम लोगों को। तो पहले तो 9 तरह में से तुम लोग 6 तरह के ऑफेंसेस को उसमें शॉर्ट कट कर लो। शॉर्ट कट मतलब बहुत 6 तरह के इजी याद हो जाएंगे। जो 3 बचेगा उनको ऑटोमेटिक याद कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला है कि सम्मन केसेस। इसका मतलब इसमें जो सम्मन केसेस, फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग तो बना दिया है सम्मन केसेस, यहाँ हेडिंग नहीं बना हुआ है। तो कह रहा है कि वो ऑफेंसेस जो नॉट पनिशेबल विथ डेथ, आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो इस तरह के जो मैटर होते हैं, सम्मन केसेस एक तरह से होते हैं, तो उन मामले में यहाँ पे समरी ट्रायल हो सकता है। क्योंकि सम्मन ट्रायल क्या होता है, WXY। डब्ल्यू क्या कहता है कि सम्मन केसेस वही होते हैं जो वारंट केसेस नहीं है। तो वारंट केसेस क्या होते हैं, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। तो वारंट केसेस वे हैं जो 2 साल से पनिशेबल हो, 2 साल से अधिक का डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। तो इसका हेडिंग ये बनता है कि सम्मन केसेस का समरी ट्रायल हो सकता है। अब देखो सेकेंड कैटेगरी में आ जाओगे। जब सेकेंड कैटेगरी में आ जाओगे तो मान लीजिए थेफ्ट को हम ले लेते हैं। तो थेफ्ट सम्मन केस कहलाएगा कि वारंट केस कहलाएगा, तो थेफ्ट वारंट केस कहलाएगा। क्यों वारंट केस कहलाएगा, क्योंकि 379 का पनिशमेंट कितना है, कि मैक्सिमम 3 इयर्स का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो 2 साल से जो ऑफेंस बढ़ गया वो क्या हो गया, वारंट केसेस हो गया। तो सारे वारंट केसेस यहाँ नहीं डिसाइड होंगे, यहाँ पे वारंट केसेस में लिमिटेशन बना दिया गया है कि इस तरह का होगा। अब मान लीजिए कि दूसरा लिमिटेशन हम देखते हैं, जैसे थेफ्ट है। किसी व्यक्ति ने, 2 तरह के व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति ने करोड़ों का थेफ्ट किया और किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए का थेफ्ट किया। तो थेफ्ट है, 379 में दोनों का पनिशमेंट होगा। तो अब कह रहा है कि जो हजारों रुपए का, करोड़ों घपला किया है, घोटाला किया है, चोरी किया है, उसका समरी ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन थेफ्ट में ही, 379 में ही
जो व्यक्ति 2000 से कम का चोरी किया हो, 2000 से कम का चोरी किया हो, उसका समरी ट्रायल हो सकता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने थेफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो 2000 से ज्यादा की चोरी हुआ हो, वहां पे समरी ट्रायल नहीं होगा। जो 2000 से कम का हुआ है, उसका चोरी हो सकता है। तो अब समझ में आ गया होगा। एक कह भी रहा है कि थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 80, 81 इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं, उनका मैटर में इस तरह का होगा। और एक बात और भाई, इसमें इन्हीं तीनों सेक्शन का, चौथे सेक्शन का 382 वाले का नहीं कवर करेगा, ये सिर्फ 3 सेक्शन का कवर करेगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे तुम्हें कि पहला तुम्हें 1 हो गया सम्मन का, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनमें कि 2000 से कम का चोरी हुआ हो, 2000 से कम का चीटिंग हुआ हो, इस तरह का मैटर इसमें आएगा। तो पहला याद हो गया थेफ्ट। थेफ्ट वो थेफ्ट जो 2000 से कम का हो, और 2000 से ज्यादा हो तब तो जान ट्रायल होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, समरी ट्रायल नहीं होगा। अब मान लीजिए कि स्टोलन प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं तुम लोगों को हमेशा क्लास में बताता हूँ कि स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन किया गया है। सेक्शन 11 के अंतर्गत स्टोलन प्रॉपर्टी कवर होती है। तो स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब कि इस सेक्शन से पहले जो भी प्रॉपर्टी का ऑफेंसेज हैं, वो स्टोलन प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। अब इस सेक्शन से पहले, इस सेक्शन के बाद नहीं। अब चीटिंग की जो प्रॉपर्टी है, चीटिंग में जो रिसीव किए हो, वह स्टोलन प्रॉपर्टी आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 411 जो है, 411 जो है 415 से पहले आता है। तो जब पहले आएगा तो स्टोलन प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। लेकिन अब तुम्हें मैं पूछूं कि थेफ्ट की प्रॉपर्टी स्टोलन में आएगी, तो तुम कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 411 से पहले 378 आता है, 379 आता है। अगर मैं पूछूं कि एक्सटॉर्शन की प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी की डिफिनेशन में आएगी, तुम बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 383 411 से पहले आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, इस तरह के प्रॉपर्टी जो है स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएंगी। लेकिन इसके 411 के बाद वाली जो प्रॉपर्टी हो गई, चीटिंग हो गया, मिसचीफ हो गया, ये सब प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो कह रहा है कि जहां किसी व्यक्ति ने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, या रिटेन किया है। रिटेन मतलब कि लेने के बाद रख लिया है। तो रिसीव करना और रिटेन करना में अंतर क्या है? रिसीव करना का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने बस टाइम बिंग अभी तुरंत तुरंत रिसीव ही किया है, अभी सोच रहा हूँ घर के अंदर ले जाऊं कि न ले जाऊं, रखूं कि न ले जाऊं, पता चले कि जैसे घर के ले जाऊं पुलिस आ जाए या वो हमें फंसा दे, कि ब्राइबरी के केस में फंसा दे। तो रिसीव तो कर रहे हो, लेकिन रिटेन करने से डर रहे हो। तो रिसीविंग और रिटेनिंग दोनों कवर कर रहा है। और उस तरह की प्रॉपर्टी का जो कि 411 में कवर हो रही है, और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 2000 का। तो पहला तुमने देख लिया कि थेफ्ट के मैटर में नॉट एक्सीडिंग 2000। दूसरा देख लिया कि स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 2000 में। तीसरा देख लिया 414 के अंतर्गत। 414 सेक्शन क्या कहता है? असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट आर डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। मान लीजिए, देखिए, जैसे एक आदमी ने चोरी करके लाया, चोरी किया, सेकेंड पार्ट में आ गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, थेफ्ट में आ गया। कितने का चोरी करके लाया है? 1000 रुपए का सामान का चोरी करके लाया है। तो जब ये एक्ट पास हो रहा था, उस समय 1000 रुपए का बहुत ज्यादा वैल्यू था। तो ऐसा नहीं कि आज के हिसाब से 2000 कैलकुलेट करो, उस समय के हिसाब से कैलकुलेट करो। अलग बात है कि पार्लियामेंटेरियन के पास, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब काम पर हम ध्यान दें और इसका अमाउंट बढ़ाएं, ये अलग बात है। तो इस तरह का हम लोग उस समय के हिसाब से, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने चोरी करके लाया, तो जब चोरी करके लाया तो उसका होगा समरी ट्रायल क्लास सेकेंड में। लेकिन जब चोरी करके लाया तो किसको दिया? अपने पत्नी को ला करके दे दिया। कहा कि होता है ना कि पत्नी के लिए ला करके दे दिया कि लो इसको रख लो। और जब उसको रखने के लिए कहा, तो अब उसने क्या किया कि अपने बेटे से पूछती है और अपनी बेटी से पूछती है कि बताओ इसको कहाँ ऐसे छुपा करके रखें, इतनी बड़ी संपत्ति है, कहाँ इसको छुपा करके रखें कि कोई न पूछ पाए। तो बेटा बेटी जो है अपनी माँ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो, इस थेफ्ट में वो आएगा, हस्बैंड आएगा,
सेकेंड थर्ड वाले में जब स्टूडेंट प्रॉपर्टी में वाइफ आएगी, और ये फोर्थ वाला जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में उसके बच्चे और उसकी मतलब बेटा बेटी भी कवर कर जाएंगे। कि बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। किस मामले में असिस्ट कर रहे हैं, असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। वो असिस्ट कर रहे हैं डिस्पोज करने में, कंसील करने में, जो कि अंडर सेक्शन 414 में ऑफेंस है, और जहां उसका वैल्यू कितना है, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो इस तरह से पूरी फैमिली चपेटे में आ गई। ये तरह से कोविड-19 की तरह, कोरोना की तरह, एक लोग आए तो सब लोग चपेटे में आ जाते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि अब इसमें हर मामले में 2000 से ज्यादा की है। तो इस तरह का मैटर हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं, दो आदमी चोरी करने गए। एक आदमी ने चोरी करके लाया, उसने चोरी किया तो उसने किया 1000 रुपए का, और दूसरा ने चोरी किया 3000 का। तो अब 1000 रुपए वाले का समरी ट्रायल होगा, 3000 वाले का नहीं होगा। 3000 वाले ने ला करके अपनी पत्नी को दिया, 3000 वाले ने लाकर अपनी पत्नी को दिया। तो उस तरह के मैटर में ये सब वो कर लेना। तो वहां पे पत्नी पर भी समरी ट्रायल नहीं चलेगा, सम्मन ट्रायल चलेगा या वारंट ट्रायल चलेगा। अब हम आते हैं, तब तुम लोग कितने याद कर लिए, 4 याद कर लिए। पहला तो हो गया तुम्हारा सम्मन ट्रायल हो गया, दूसरा 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थेफ्ट 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 411 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टोलन प्रॉपर्टी। इसीलिए हमने यहाँ पे चार्ट ही, टेबल ही बना दिया है। टेबल में लिखा, देखो एक साइड में ऑफेंस है, दूसरे साइड में प्रोविजन है, और तीसरा साइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया तुम लोगों के लिए इजी रहे कि नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज के लिए। तब यहाँ पे थेफ्ट का है तो ये भी देखो डू है, डू है, डू है, तो सब में एक ही सिमिलरिटी है। तो 3 ऐसे याद हो गया। एक तुम्हारा याद हो गया कि नहीं, संबंध केसेस हो गया, पहला हो गया, तो तुम्हारे पास 4 याद हो गए। अब 2 और याद करवा देता हूँ। कह रहा है कि किसी भी ऑफेंस का जो यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ पे जितने ऑफेंस यहाँ पे लिखे गए हैं, उन ऑफेंसेस का अबेटमेंट हो। और अबेटमेंट सारे ऑफेंस का नहीं, कि ये नहीं कि अबेटमेंट टू मर्डर का, अबेटमेंट टू द रेप का, नहीं। यहाँ पे आप द फोर गोइंग ऑफेंसेस, फोर गोइंग ऑफेंसेस का मतलब वे ऑफेंसेस जो यहाँ पे सब क्लास 1 2 3 4 5 6 में दिए गए हैं। तो इसीलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अबेटमेंट ऑफ द फोर गोइंग ऑफेंसेस। तो इसका फोर गोइंग से ही निकल करके आ जाता है। अगर फोर गोइंग वर्ड हटा दोगे तो यहाँ पे अबेटमेंट का आप रेप आ जाएगा, अबेटमेंट आप मर्डर आ जाएगा, किसी का भी यहाँ समरी ट्रायल होने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हें क्या यहाँ सीखने को मिला, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हें यहाँ सीखने को मिला है कि अबेटमेंट ऑफ द फोर गोइंग ऑफेंसेस का। और उसी तरह से अटेम्प्ट का भी देख लो। अटेम्प्ट का भी, तो अटेम्प्ट का भी किसका अटेम्प्ट का, क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का, नहीं। यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ फोर गोइंग ऑफेंसेस। तो फोर गोइंग ऑफेंसेस, जहां ऊपर के ऑफेंसेस जो ऑफेंसेस हैं उन्हीं का अटेम्प्ट होगा। तो अब तुम्हें 6 याद हो गया। तो पहला सम्मन्स हो गया, दूसरा तुम्हारा कि थेफ्ट 2000, स्टोलन 2000, असिस्टिंग इन कंसीलिंग 2000, अबेटमेंट अटेम्प्ट, तो 6 हो गया। तो लेकिन तुम लोग सीरियल वाइज ये लिखना है एग्जाम में, ये नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है, ये तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब तुम 5वां 6वां और 9वां तुम्हारे पास बच्चे हैं याद करने का। 5वां क्या है कि लर्किंग हाउस ट्रेस पास, लर्किंग हाउस ट्रेस पास एंड लर्किंग हाउस ट्रेस पास बाय नाइट, ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 454 456 ऑफ द आईपीसी। ये देखो गांव घर में बहुत ही कॉमन चीज होता है। करता क्या है सब, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ जो भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रात को अपना सेटिंग कर लेता है, रात को सेटिंग कर लेता है, चुपके से कुंडी खोल देती है और अपना घर में घुस जाता है। जब घर में घुस जाता है, बाई चांस पकड़ा जाता है, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है तो भगवान उसकी रक्षा करें। लेकिन अगर इस तरह का कोई आदमी करता है लर्किंग हाउस ट्रेस पास, और लर्किंग हाउस ट्रेस पास बाय नाइट, इसका डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, कॉमन सेंस में यही बता, जो छुप छुपा करके घर में घुस जाए और वो भी बिना परमिशन के। अब तुम कहोगे लड़कियां ने तो परमिशन दिया था, तो ट्रेस पास हुआ कैसे। लड़की परमिशन दिया था, उस काम के लिए लड़की अथराइज नहीं थी, उस काम के लिए उसका जो गार्जियन था वो अथराइज था। तो तो यहाँ पे जो छुप छुपा कर घर में घुसते हो किसी को, ये जो दो है, एक लर्किंग हाउस ट्रेस पास, दिन दहाड़े घुस गए, मौका पाए घुस गए, और है जो दूसरा वाला है इन नाइट की व्यवस्था है, रात की व्यवस्था है। तो दोनों की व्यवस्था कवर करेगा, लर्किंग हाउस ट्रेस पास है, लर्किंग हाउस ट्रेस पास बाय नाइट है।
हाँ, अगर जाकर घर में घुस गए और कुछ किए हो तो उसका एक अलग से ऑफेंस बनेगा, उसका समरी ट्रायल नहीं होगा। यहाँ जब सिर्फ घर में घुसे हो, कुछ किए नहीं हो, उसी का ऑफेंस बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लर्किंग हाउस ट्रेसपास है और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है। एक भी छोड़ोगे तो गबड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए लर्किंग हाउस ट्रेसपास छोड़ दिए, सिर्फ बाय नाइट लिखे, तो जो दिन में घुस करके जो भी किया हो, जो दिन में घुसा हो, वो कवर नहीं करेगा। तो इसलिए तुम्हें दोनों लिखना होगा। ये किसको किसको कवर कर रहा है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास को भी कर रहा है और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। तो ठीक है, तो लॉकडाउन में तुम लोग बचे रहो, ये नहीं कि पता चले कि किधर उधर भटक रहे हो, फिर सर को कॉल करोगे कि सर क्या करें, फंस गए। तो हियर कम टू द पॉइंट इज दैट पॉइंट नंबर 6, ब्रीच ऑफ द पीस एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक अलग ऑफेंस है। ब्रीच ऑफ द पीस एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो यहाँ पर है कि किसी आदमी को तुम दो काम कर रहे हो, दो है। एक सेक्शन ब्रीच ऑफ पीस है, तुम शराब वराब पी करके तुम इधर उधर कर रहे हो, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, तो इस तरह का दोनों मैटर में ये कवर कर जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से तुम्हारे दो ए भी हो गए, एक ब्रीच ऑफ पीस हो गए एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गए। और इस तरह का, 1 मिनट तुम लोग रुकना थोड़ा सा, तो 1 मिनट रुक जाओ। ये अपनी रात है, जितना जगना है, जो पढ़ना है पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल याद आ रहा था, तुम क्रॉस चेक कर लें बताने से पहले। अच्छा, ये वर्ड वाइज चलो अलग चीज है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे दो और ऐड हो गए। तो जो ऐड हुए हैं, क्या ऐड हुए हैं? लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है, और ब्रीच ऑफ पीस एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। और लास्ट वाला तुम देखोगे, कंप्लेंट अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट, एक कानून है, उसमें अंतर्गत उसमें सारे ऑफेंसेस के मामले में ट्रायल नहीं होगा, उसी मामले में जो कंप्लेंट सेक्शन 20 में कवर कर रहा हूँ, सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास का मैटर कवर कर रहा हूँ। अब देखो 9 याद हो गए, और 9 याद करना कितना तरीका था। इसमें एक बात और ध्यान में रखना कि यहाँ पे जनरली जो बॉडी के जो ऑफेंसेज हैं उनका मेंशन नहीं किया गया है। अब हम याद कर लेंगे, पहला कौन सा था? पहला था सम्मन्स ट्रायल के था। सम्मन्स ट्रायल हेडिंग देना, हेडिंग दिया भी नहीं होगा, लेकिन तुम लोग अपना याद करने का तरीका मैं निकालता हूँ। देखो हेडिंग लिख लेने से थोड़ा सा याद, तुम लोग याद करने में इजी हो जाता है, और यही एक तरीका भी होता है। तो पहला हो गया सम्मन केसेस, दूसरा हो गया थेफ्ट हो गया, तीसरा हो गया तुम्हारा स्टोलन प्रॉपर्टी 411, चौथा हो गया 414। ये 2-2 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। पांचवा तुम्हारा हो गया लर्किंग हाउस ट्रेसपास, जो और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, चाहे दिन को घुसो चाहे रात को घुसो। छठा हो गया कि ब्रीच ऑफ पीस एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब जानबूझ करके शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हो, या किसी को धमकी दे रहे हो कि नहीं ठीक है और तुम्हें देख लूंगा, ऐसा वैसा। या ऊपर के जो ऑफेंसेज हैं, ऊपर कितने ऑफेंसेज हुए? 6 ऑफेंसेज हुए। 6 ऑफेंसेज का अबेटमेंट कर रहे हो, 6 ऑफेंसेज का अबेटमेंट कर रहे हो, या अटेम्प्ट कर रहे हो 6 का। तो अबेटमेंट या अटेम्प्ट है तो दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी। देखो अबेटमेंट और अटेम्प्ट दोनों इनक्वाइट क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो तुम्हारा 6 2 8 हो गए, और एक हो गया 9वां तुम्हारा कंप्लेंट कैटल ट्रेसपास। तो अब इस तरह से मैं तुम्हें 3 चीज बता दिया। क्या बताया कि 260 में डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, दूसरा पॉइंट बताया कि कौन जज ट्राई कर सकता है, तीसरा बताया कितने ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 261 में आते हैं। तो 261 में जो मैटर आ रहा है, उसमें 2 तरह की चीजें हैं। उसमें 2 तरह की चीजें ये है कि हाई कोर्ट कैसे अथराइज, मतलब कि अगर एक बार तुम लोग सेक्शन खोलो 260 खोलो, मैं थोड़ा बता देता हूँ, कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि 260 और 261 का कंबाइंड रीडिंग से ही निकल करके आता है कि 4 लोग उसका ट्रायल कर सकते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 260 में तो सिर्फ 3 का नाम लिखा हुआ है, ABC, CGM, MM एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। लेकिन 261 में सेकेंड क्लास के बारे में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे नंबरिंग 4 इसलिए दे दिया है कि तुम लोग याद करने में सही रहो।
लेकिन यहाँ 3+1 होना चाहिए, 3+1 दैट इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो 261 यही बताता है कि मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का कब अथराइज होगा और कैसे अथराइज होगा, उसके बारे में यहाँ स्पेशल प्रोसीजर है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि हु कैन ट्राई द समरी ट्रायल, तो तुम बोलना कि अकॉर्डिंग टू द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 260 एंड 261 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सीजीएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। एक बात और मैं बताता हूँ, हमेशा तुम लोग को जूरिस्प्रूडेंस भी बताता हूँ कि जैसे यहाँ सीजीएम दिया हुआ है तो फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिया हुआ है, तो अरे भाई समरी ट्रायल में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में शहर में भी तो ऑफेंस होते हैं ना, तो जो शहर में ऑफेंस हो गए उनका कौन ट्रायल करेगा, क्योंकि शहर में तो तुम्हारे फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट तो होते नहीं है, यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उनको वहाँ पे वो रखा जाता है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इसलिए इनको भी कवर कर लिया गया कि शहर के मैटर हो तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कवर कर लेंगे, बाकी मैटर हो तो इधर उधर से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कौन लोग ट्रायल करेंगे, शहर शहर की गांव की सबकी व्यवस्था है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी लिखना मत भूलना। अब आजा 262 क्या कहता है कि प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा। तो देखो समरी ट्रायल से पहले का चैप्टर कौन था, 20 था, और 20 किसके बारे में डिस्कस कर रहा था, समन्स ट्रायल के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो एक कह रहा है, इसके दो पार्ट है 262 के। 262 का पहला पार्ट, पहला क्लास क्या कह रहा है, पहला क्लास कह रहा है कि देखो भाई टू सी इस चैप्टर में 21 में कुछ प्रोसीजर तो हमने लिख रखा है, लेकिन जो प्रोसीजर हमने इस चैप्टर में नहीं लिख रखा है, कैसे जजमेंट लिखा जाएगा, चार्ज कैसे फ्रेम होगा, जहां पर ये चैप्टर साइलेंट है तो हम किसकी मदद लेंगे, हम चैप्टर 20 का जो प्रोसीजर चैप्टर 20 है सम्मन ट्रायल का, उसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर जो बात चैप्टर 20 में लिखी गई है, 21 में जो बात 21 में लिखी गई है उस मामले में चैप्टर 20 के मैटर अप्लाई नहीं होंगे। चैप्टर 20 कब अप्लाई होगा, वहीं अप्लाई होगा जहां पे 21 साइलेंट है। तो ये हो गया सेम एज समन्स ट्रायल, मैंने यहाँ पे कोट कर दिया हूँ, लेकिन एक्सेप्ट एज अदरवाइज जो वर्ड है वही बताता है। अब आ जाओ कि क्लास 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 2 पर ही तुम्हारा पिछले साल की प्रॉब्लम आ गया था और ड्यू एलएलबी 2019 में आ गया था और मुझे बहुत ही गुस्सा आया था। गुस्सा इस बात का आया था कि तुम लोगों का मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कराया था और सब्जेक्टिव टेस्ट भी कराया था, दोनों में मैंने क्वेश्चन रखा था कि भाई समरी ट्रायल क्या होता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव में तो मैं क्लियर कट पूछा था कि कितने साल का इम्प्रिजनमेंट समरी ट्रायल में दिया जा सकता है। देखो ट्रायल अलग चीज है, ट्रायल के मैटर में तो देख रहे हो कि नहीं सेकेंड क्लास भी 6 महीने तक का अथराइज कर दिया जाता है, लेकिन जब पनिशमेंट की बात आएगी तो चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, चाहे मेट्रो सीजीएम हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे चाहे सेकेंड क्लास हो, कोई भी हो, 3 महीने से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। अब बात आती है कि 263 की बात आती है, तो 263 में रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, समरी ट्रायल्स में कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ये सब चीजें लिखी गई हैं, तुम लोग पढ़ लेना। और 264 में हम आते हैं, 264 में जजमेंट जब लिखा जाएगा तो क्या मेन बात रखी ध्यान में रखी जाएगी, जजमेंट लिखते समय दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब होल जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, होल फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, सब्सटेंस लिखना अपने आप में सफिशियंट होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है रीजन फॉर फाइंडिंग, रीजन फॉर फाइंडिंग में लिखना बहुत जरूरी है कि किस बेसिस पर आप कंक्लूड किए हैं कि अपराधी इनोसेंट है कि पनिशेबल है, मतलब इनोसेंट है या क्राइम कमिट किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और 265 जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कह रहा है कि जो यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, जो जजमेंट लिखे जाएंगे वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में लिखे जाएंगे। तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है सेक्शन 272 में डिस्कस किया गया है। और लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होता क्या है, हर स्टेट अपना अपना लैंग्वेज फिक्स करती है कि यहाँ पे जो प्रोसीडिंग होगी कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग होगा, कैसे जजमेंट लिखा जाएगा, तो वो काम लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट की कैटेगरी में आता है। और यह कौन डिसाइड करता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट का, तो कह रहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मैटर छोड़ दो, तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इससे क्या फायदा होता है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु की सरकार को तुम्हें वो देना चाहिए ना कि नहीं वहां के तमिलनाडु के लोअर जुडिशरी में कौन सा कोर्ट में जजमेंट हो लिखा जाए, आर्गुमेंट हुआ है वो, अदरवाइज क्या होगा,
अदरवाइज तुम उसको अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां हिंदी लागू कर देगी या वहां पे इंग्लिश लागू कर देगी, तो कितना अनकंफर्टेबल होगा बेचारों को, होगा ना। जैसे मान लीजिए तुम्हारे ही लोअर कोर्ट में हम कह दें कि नहीं तमिलियन में तुम्हारे यहाँ जजमेंट लिखा जाएगा, तमिलियन में तुम्हारे वो विटनेस लिखे जाएंगे, तुम्हें कितना दुख होगा, दुख होगा। तो इसीलिए वहां पे हर स्टेट को ऑथराइज किया गया है। तो जनरली अगर स्टेट वाइज देखोगे तो जहाँ की स्टेट की भाषा है वही लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होती है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या है, हिंदी है। तमिलनाडु में जाओगे लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या है, तमिल है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, 272 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था तुम लोगों को। अब हम यहाँ से अपने चैप्टर की स्टार्ट करेंगे और हम तुम लोगों को इजी बनाने के लिए कि बच्चे बहुत इजी तरीके से समझ जाएं और कॉम्पिटिटिव में बहुत अच्छा वो करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम करें। नाम तो पहले से ही है, ब्रांड की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने हार्ड वर्क की वजह से इसको अपने एक अलग इसको मेंटेन किए रखना है। बाकी तो कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। और इसीलिए मैं भी इसी मेंटेन करने की वजह से हर परिस्थिति के बावजूद भी इसलिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है, टीचर की भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन अगर खड़ा होता है तो उसके पीछे उसके स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। और ये कहा भी जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, तो रोम हमेशा कभी एक दिन में नहीं बना और कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी चीज ब्रांड एक दिन में नहीं बनती है। और यह समय आ गया है हम लोगों का भी कि हम लोग अपना दायित्व निभाएं और इस इंस्टीट्यूशन में जो हम लोग इतने कम फीस में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और इतनी सैलरी पा रहे हैं और गवर्नमेंट हम लोगों पे इतना खर्च कर रही है। यूनिवर्सिटी भी एक फैक्ट्री की तरह होता है। एक स्टूडेंट्स को तैयार करने में कम से कम 50 लाख खर्च हो जाता होगा। आप कहोगे 50 लाख कैसे खर्च हुआ, हमने तो 6,000 ही फीस पेड किया। तुम 6,000 फीस पेड किए, लेकिन गवर्नमेंट से जाकर पूछो कि सैलरी देने में, यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने में कितना पैसा खर्च होता है। तो तुम लोग भाई कोई भी गलत कदम उठाने से पहले या कुछ भी करने से पहले, कई बार स्टूडेंट्स क्या करता है कि प्यार मोहब्बत में इधर उधर धोखा खा करके वो कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो वैसे तो हमारा स्टूडेंट सुसाइड नहीं करेगा क्योंकि सब दिल्ली में माया नगरी में है, सब माया को समझता है, बिहारी प्यार से दूर रहता है सब। कोई बात नहीं, दूर रहना भी चाहिए। तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी बहुत खर्च करती है, माँ बाप की उम्मीदें हैं, हमारा भी उम्मीद है। तो आ जाओ, ये सब फिलोसफिकल चीजें हैं, लेकिन डू हार्ड वर्क एंड लास्ट सेंटर वन को एक अपनी ऊंचाई पर टच करना है, पहुंचाना है। ब्रांड बनाए बने होते नहीं है, ब्रांड बनाए जाते हैं। और हम लोग अपने हार्ड वर्क की वजह से आफ्टर 10 years we will create the brand of the LC1 and that will be the best brand in this country as well as we will try. So here is that which chapter does disclose about the summary trial. तो समरी ट्रायल क्या होता है भाई, तो समरी ट्रायल का चैप्टर कौन सा है, तो तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं सेट किया हूँ। चैप्टर यही है कि हाँ भाई, अगर इफ एनी वन फील्स प्रॉब्लम्स इन द हिंदी लैंग्वेज प्लीज इन्फॉर्म योर सीआर एंड इफ वंस ही से आई विल टेक द क्लासेस इन हिंदी और इन द इंग्लिश and I am comfortable in both the language. There is no problem for me. But as you know that the maximum students belong to the Hindi belt, and whenever we speak the Hindi, we speak by the soul, and whenever we speak the English, that is we speak by the mind, and that is the another points. Come to the point here is that चैप्टर कौन सा चैप्टर डील करता है समरी ट्रायल को, तो समरी ट्रायल को चैप्टर डील करता है चैप्टर 21। और सेक्शन कहां से कहां तक है भाई, 260 से लेकर 265 तक का है जो समरी ट्रायल को डिस्कस करता है। अब समरी ट्रायल की मीनिंग क्या है, देखो समरी ट्रायल को तो नए डिफिनेशन में डिफाइन किया गया है, 2 में भी डिफाइन नहीं किया गया है और यहाँ पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो समरी ट्रायल का डिफिनेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमने समरी ट्रायल का डिफिनेशन कहाँ से ढूंढा, हमने एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। और कौन सी रिपोर्ट है भाई, 41वीं रिपोर्ट है, 41st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया which deals about the para 22.1 at the page number 178. According to this report, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इसका डिफिनीशन क्या है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि इसमें सिर्फ डिफिनीशन ही नहीं बताया गया इस पैराग्राफ में, इसके साथ 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 इसका ऑब्जेक्ट भी बता दिया गया है। लेकिन ठीक है, इसमें हम बता रहे हैं कि लॉ कमीशन 41वीं रिपोर्ट में क्या कहा। 41वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि समरी ट्रायल क्या होता है, इज एन एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ रेगुलर ट्रायल।
is an abridged trial, summary trial in abridged form of regular trial. हाँ यार सुमित, अगर इस लाइन को देखना तो बाद में बताना कि ऐसा कैसे हम करें कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आए। ये लाइन जो है ना हमारी इधर उधर घूम जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन का एक ऑप्शन आता होगा कहीं ना कहीं, जिसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ, देखना तो बताना। तो यह क्या है, इसका समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या है, समरी ट्रायल क्या होता है, कि समरी ट्रायल की मीनिंग क्या है। समरी ट्रायल इज एन एब्रिड फॉर्म ऑफ रेगुलर ट्रायल and is resorted to in order to save time in trying petty cases. It means in the interview if anyone asks what is the meaning of summary trial, तो summary trial बताना कि respected sir, according to 41st report of the Law Commission of India, uh, summary trial means that is a trial which is average form of the regular trial, and it is conducted to save time and only in petty cases, not in serious cases. In only the petty cases. Here word is that petty cases. Why conducted? It is conducted to save time. And what is this? This is the abridged form. Why? This is the in which cases? Petty cases. That's why less than 2000, less than 2000, less than 2000, 350, like that was that. Is summary trial justified? Question is that whether the summary trial is justified. कई बार लोग कहते हैं भाई हरी इज बरीड, जस्ट मतलब कि अगर जस्टिस को अगर हरी करेंगे तो बरीड कर देंगे आप। तो इस तरह से इसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इसी रिपोर्ट में 3 ग्राउंड पे इसको जस्टिफाई किया है। कहा कि भाई हम इतना प्रिकॉशन लेकर चलते हैं समरी ट्रायल में भी कि यहाँ पे इनजस्टिस होने के चांस नहीं होते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे हम प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं। पहला कहा कि हम उसी तरह के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पहला इसने कहा कि हम इसी टाइप के जुडिशियल ऑफिसर को रखते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, और जिनके पास एक्सपीरियंस अगर नहीं हो तो उनके ऑफेंसेस को कम मैटर में हम उनको अलाउ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब देखो हमने सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को तो अलाउ कर दिया, लेकिन जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात आई तो वहां पे हाई कोर्ट अथराइज करेगा। मतलब मान लीजिए 100 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं तो 100 में से उनका रिकॉर्ड चेक करेगा, 10 सुटेबल पाए, 90 को लगा कि 90 सुटेबल नहीं है, तो 100 में से 90 को ही समरी ट्रायल को मिलेगा ट्रायल कंडक्ट करने के लिए। इसीलिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में भी उस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ज्यादा रेपुटेशन है जिसको कि समरी ट्रायल कंडक्ट करने का पावर मिल जाए। ठीक ना, तो ये है। तो सारे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लासेस नहीं कर सकते, वही करेंगे, तो इसीलिए करा है हम इतना प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं। और दूसरा प्रिकॉशन तो हम ये लेकर के चलते हैं कि हाई कोर्ट पर भी हम कंट्रोल कर देते हैं कि जब सेकेंड क्लास को अथराइज करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ वाले ऑफेंस में ही अथराइज करोगे। तो पहला हमने प्रिकॉशन ले रखा है कि ट्राई कौन करेगा। दूसरा हम प्रिकॉशन ले रखे हैं कि नेचर ऑफ ऑफेंसेज, हम इसमें इसी तरह का सिर्फ ऑफेंसेज ट्राई करने के लिए रखे हैं आपको कि जो कि पेट्टी नेचर का हो। पेट्टी मतलब बहुत ही छोटे 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 मैटर का हो। जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल बता रहा था थेफ्ट का, जो करोड़ों का अगर ऑफेंस कमिट किया है तो उसका समरी ट्रायल नहीं होगा, लेकिन वही 2000 से कम का ऑफेंस किया है तो पेट्टी ट्रायल होगा। तो हम इतना पेट्टी ऑफेंसेज लेकर चलते हैं तो यहाँ पर भी चांस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पनिशमेंट भी हम इतना कम रखे हैं कि चाहे भले ही ऑफेंस कितना का ही हो, भले ही 2 साल तक का पनिशेबल हो, चाहे भले ही सीजीएम में ट्रायल करो, लेकिन पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा का कोई भी नहीं दे सकता। तो इसने रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इन रिपोर्ट की हेल्प से इन ग्राउंड्स पर जस्टिफाई किया। अगर आपको अगर पूछ दे कोई इंटरव्यू में कि ऑन व्हाट ग्राउंड समरी ट्रायल कैन बी जस्टिफाइड, वेदर by summary trials injustice will not occur, you have to say no, because we have taken precautionary measures. What are the precautionary measures? Only qualified judges, only petty offenses, and only the minimum punishment, that is the 3 months. That is the next point is the what is the object of the summary trial. Object of the summary trial is that even at that time word I was using a report is was that to save the time. This word was that, here was that. What was the point?
I just mentioned here that to save the time. To save the time, that was the point, that was the one object, and with the help of one leading case, that is the Bindeswari Prasad बिंदेश्वरी मंडल वर्सेस बिरजू मंडल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि होल ऑब्जेक्ट ऑफ द समरी ट्रायल इज टू सेव द टाइम बाय शॉर्टेनिंग द पीरियड। एंड इसका दो पर्पज बताया गया। पहला तो पर्पज ये है कि भाई सेव टाइम, टाइम कम कर लिया जाए, और दूसरा है कि एंड द वर्क ऑफ द मजिस्ट्रेट इन मेकिंग रिकॉर्ड इन पेटी केसेज, और इससे मजिस्ट्रेट का भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करने में जो टाइम लगता है उनका टाइम को भी बचा लेंगे। जैसे हमने अभी जजमेंट में तुम लोग बता रहा था कि जजमेंट में क्या लिखने की जरूरत है, सिर्फ सब्सटेंस और रीजन लिखने की जरूरत है। अगर नॉर्मल जजमेंट लिखोगे तो पूरा सिस्टमेटिक सब कुछ लिखोगे, इशू लिखोगे, आर्गुमेंट लिखोगे दोनों पार्टी की तरफ से। तो इस तरह का इसमें दो काम है, यहाँ सेव टाइम एंड जो वर्कलोड है मजिस्ट्रेट से उसको भी बचा लेते हो। अब हमने क्वेश्चन बनाया कि हु कैन कंडक्ट समरी ट्रायल, तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है कि कंबाइंड रीडिंग, दोनों की कंबाइंड रीडिंग से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन कौन ट्रायल कंडक्ट करेगा। अभी मैं इसको डिस्कस कर दिया हूँ। अब व्हाट ऑफेंसेज में बी ट्राइड समरली, इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया कि समन केसेस हो, थेफ्ट नॉट एक्सीडिंग 2000 हो, स्टोलन प्रॉपर्टी हो, असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट, लर्किंग हाउस, इसको मैं डिस्कस कर दिया और यहाँ पे इस्तेमाल चार्ट बना दिया। अब तुम्हारा DU-LLB में क्वेश्चन आया हुआ था, उसको भी एक बार देख लो कि DU-LLB में क्वेश्चन क्या आया था और तुम लोग क्या लिखे थे। लिखते तो कुछ भी हो, लेकिन आखिर हो तो अपने स्टूडेंट, यही सोचता हूँ। लिखा हूँ यहीं पर, लिखा क्वेश्चन था कि रेफरिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ये सेक्शन पूछ रहा है किस सेक्शन में बात लिखी गई है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेक्शन याद कर लो। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन ये था कि मजिस्ट्रेट इन समरी ट्रायल प्रोसीडिंग ऑन कन्विक्शन पासेस एन ऑर्डर ऑफ 4 मंथ। तो मेन मुद्दा ये था कि मजिस्ट्रेट ने एक ट्रायल कंडक्ट किया समरी ट्रायल, और उसमें सजा कितने का दे दिया, सजा दे दिया इसमें 4 महीने का। ये सबसे इम्पोर्टेंट थी, सजा दिया इसने 4 महीने का। तो अब बताओ कि ये प्रोसीडिंग ये ही वाज ऑथराइज्ड। तुम्हें लिखना है कि सीधी सीधी बात भाई कि दिस आंसर इज डिपेंड अपॉन द सेक्शन 262 क्लास 2, और इसका इस सेक्शन का ये वर्डिंग है, और इसमें समरी ट्रायल में 3 महीने से ज्यादा कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकता, और इस तरह से यह इसका ऑर्डर जो था वो इलीगल था। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द लिमिट फॉर अवॉर्डिंग द इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ कन्विक्शन। तो लिमिट वही है, क्वेश्चन सेम ही है कि लिमिट भी वही है कि 3 मंथ से ज्यादा का पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं। और अगला पॉइंट हमने लिखा यही है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल। तो मेथड ऑफ प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल में अभी भी मैं बता रहा था कि 262 का क्लास 1 कहता है कि जो इस चैप्टर में मेथड लिखा गया है उस मैटर में तो इस चैप्टर को चैप्टर 21 प्रिवेल करेगा, लेकिन जब ये साइलेंट है, तो जब साइलेंट है तो उसको हम चैप्टर 20 का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं लिखा हूं, जैसे मान लो कि अब समरी ट्रायल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम होगा कि नहीं होगा, इस वर्ड का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। तो अब अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दे कि समरी ट्रायल के मामले में, हाँ समरी ट्रायल के मामले में चार्ज फ्रेम होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, किस कैसे रिप्लाई करोगे, रीजनिंग क्या दोगे। तो तुम रीजनिंग ये दोगे कि रेस्पेक्टेड सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 261 क्लास 1 262 क्लास 1 उसमें ये कहता है कि जो प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है उसमें एक वर्ड यूज होता है कि एक्सेप्ट एज हेयर इन आफ्टर। तो एक वर्ड है कि जैसे मान लीजिए वर्ड पढ़ देता हूँ तुम लोग को। वर्ड देखो ये कह रहा है कि जो भी प्रोसीजर समन ट्रायल का है वो फॉलो होगा एक्सेप्ट एज हेयर इन आफ्टर मेंशन। हेयर इन आफ्टर मतलब जैसे टू से इसके बाद, मतलब 262 क्लास 2 के बाद जो प्रोसीजर मेंशन है उनको छोड़ करके जहाँ पे लास्ट साइलेंट है वहां चार्ज को हम फॉलो करेंगे। तो चार्ज फ्रेमिंग करने के बारे में 260 से लेकर 265 साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम 262 क्लास 1 की मदद से हम कहाँ चले जाएंगे, 250 में 251 में चले जाएंगे, क्योंकि 251 जो है बताता है कि समन ट्रायल में चार्ज फ्रेम होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर वही बताता है कि 250 बताता है कि पार्टिकुलर ऑफेंस का बताना मैंडेटरी है,
और चार्ज फ्रेम करना कोर्ट में और मे नॉट, मतलब चार्ज फ्रेम किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, एक कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इससे ये निकल करके आया कि समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम हुआ कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दे कि वेदर सम इन द समरी ट्रायल चार्ज विल बी फ्रेम्ड और नॉट, तो हम आंसर देंगे कि ऑनरेबल रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, रिस्पेक्टेड सर, वॉट एवर दैट, respected sir, with the combined reading of the section 262 plus 1 and section 251 of the CRPC, we can conclude that framing of the charge is the discretionary power of the court। हम कहेंगे कि दोनों को अगर कंबाइन करके पढ़ लेंगे तो अब हम वहां पर एक कह सकते हैं कि चार्ज फ्रेम करना समरी ट्रायल में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। और मैं पिछले क्लास में भी तुम लोगों को बता रहा था कि जजों को मैं एडवाइस में यही देता हूँ, या सबको भी, स्टूडेंट को भी एडवाइस यही देता हूँ कि अगर जहाँ मौका है चार्ज फ्रेम करने का, वहां पे मैक्सिमम ट्राई करिए कि चार्ज फ्रेम कर ही लीजिए तो बेटर होगा। उसका रीजनिंग बता दिया था कि अदरवाइज एक्यूड क्या करेगा कि अरे एडवोकेट इनोसेंट एक्यूड को, इलिटरेट एक्यूड को एक्सप्लॉइट करेगा कि नहीं ये ऑफेंस है, वो ऑफेंस है, ऐसे वैसे करेगा। तो इस तरह के मैटर में चार्ज फ्रेम करना यहाँ मैंडेटरी नहीं है। अब हम देखेंगे कि हाई कोर्ट कब अथराइज करेगा, किस मामले में अथराइज करेगा। हु कैन अथराइज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फॉर समरी ट्रायल, आंसर इज दैट हाई कोर्ट। फॉर व्हिच ऑफेंसेस कैन बी अथराइज, ओनली फॉर दोज व्हिच डज नॉट एक्सीड 6 मंथ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही हमें अच्छा लगा है कि अगर जो मजिस्ट्रेट, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ द समरी ट्रायल इफ इट इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट हु इज नॉट अथराइज्ड टू कंडक्ट द समरी ट्रायल। करा कि वो मजिस्ट्रेट अगर समरी ट्रायल कंडक्ट कर दे जो अथराइज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं हाई कोर्ट जज हूँ, हमारे क्लास में हमारे 60 बच्चे हैं, तो 60 में से 10 बच्चों को मैं टैलेंटेड मानता हूँ। एलएलबी में सेकेंड सेमेस्टर में यल सेक्शन में कितने बच्चे हो, 60 बच्चे हो, लेकिन उसमें से 10 को मैं कॉम्पिटेंट मानता हूँ और मैं 10 को ही अथराइज किया। लेकिन 11वां जीत पड़ा हुआ है कि नहीं मैं भी करूंगा, मैं क्यों, मैं भी एडमिशन लिया एलएलबी में, मैं इक्वल हूँ, ये वो करके वो भी उसने क्या किया कि मुझे बताए बिना उसने काम कर दिया। अब जब 11वें ने कर दिया तो मैंने अथराइज कितने को किया था, 10 को किया था। तो 11वें ने किया तो ही वाज नॉट अथराइज बाय हाई कोर्ट। तो अब उसका मैटर कहाँ डील होगा, उसका मैटर डील होगा 461 प्लस जीएम में डिस्कस होगा। और इस तरह से उसके द्वारा जो प्रोसीडिंग कंडक्ट की गई है वो विसिएट करेगी, और उसके खिलाफ अगर गुड फेथ में किया है तब तो ठीक है, और फिर भी प्रोसीडिंग विसिएट करेगी। प्रोसीडिंग पर गुड फेथ बैड फेथ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 460 में गुड फेथ वर्ड तो यूज होता है, लेकिन 461 में गुड फेथ वर्ड यूज नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने वो कर लिया है। और कुछ क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि उत्तराखंड में आए हुए थे, 2002 में आया हुआ था कि कौन सा सेक्शन जो है समरी ट्रायल के बारे में डिस्कस करता है। तो मैंने अभी ये बताया कि 60 से 65 तक का समरी ट्रायल डिस्कस करता है। एमपी में क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम पनिशमेंट समरी ट्रायल का कितना दिया जा सकता है, 3 मंथ का दिया जा सकता है। और तुम्हारे ड्यू एलएलबी के 2019 का जो क्वेश्चन था उसमें कितना पनिशमेंट दे दिया था, 4 महीने का, लेकिन कितना दे सकता था, 3 महीने का। और एमपी अपीओ में 2009 में क्वेश्चन आया था कौन कौन जजेस ट्रायल इसका कर सकते हैं। तो ऑप्शन में सीजीएम कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन कर सकता है, अब मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। लेकिन देखो आगे लिखा हुआ अथराइड बाय द हाई कोर्ट, अगर इसी को मैं कट कर दूं, अगर इसी को मैं अगर लगा कर कट कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं इसको कट कर दूं, ये देखो, अगर उठाकर मैं कट कर दूं तब क्या होगा, तब ऑप्शन गलत बन जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं ट्रायल कर सकता है। वो तभी ट्रायल कर सकता है, वही ट्रायल कर सकता है जब अथराइड बाय हाई कोर्ट। जो वर्ड है अथराइड बाय हाई कोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यह है कि प्रोसीजर, अगर समरी ट्रायल का प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, तो कह रहा है कि प्रोसीजर फॉलो करने का तरीका बता रहा है। तो कह रहा है कि प्रोसीजर मेंशन इन द सीआरपीसी, नहीं भाई, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, प्रोसीजर फॉर वारंट, तो प्रोसीजर फॉर हाई कोर्ट, तो समन ट्रायल वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तुम लोग वो कर लेना। कुछ ऑफेंसेस बता रहे हैं कौन ऑफेंस का ट्रायल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ट्राइड। तो अब देखो ग्रीवस हर्ट का, ग्रीवस हर्ट का ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने अभी भी कहा था तुम लोगों को कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है उसको कवर नहीं करता है, जनरली उसको अवॉइड करता है। अब किसका हो सकता है, देखो थेफ्ट लिखा, लेकिन थेफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, थेफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है कि पनिशेबल लेस देन 2000। अगर यहीं से थेफ्ट छोड़ देता तो भी आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ा लेस देन 2000।
और लर्किंग आउट पास, रात को घुस गए अपनी गर्लफ्रेंड के पास या इधर उधर किसी का सामान चुराने, जो भी है। तो लर्किंग आउट पास, रात को घुसोगे तो बाय नाइट होगा, और दिन को घुसोगे तो ये होगा। इन दोनों में अंतर है। तो 354 है, 456 है। और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेज एज मेंशन इन सेक्शन 260, तो अबेटमेंट अटेम्प्ट बता ही दिया था। तो इस तरह से समरी ट्रायल बंधु कंप्लीट हो गया। और तुम सब सीरियसली इसको पढ़ लेना, तैयार कर लेना। अब देखो, जब कंप्लीट किया हूं तो एग्जैक्ट रात को 3:30 बज गया है। तो मैं सोचता हूँ कि तुम लोग अपने टीचर का वैल्यू समझोगे और इसको सुनोगे। चलो भैया, थैंक यू।